Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to deal with the important MCQ based on genetics biology class 10th. So here we have all the important topics I have tried to cover, and I will try to explain most of the options also, so that you can get more benefit from the single question. Okay, so now we are going to start. So the first question here is the genetic materials. So see, these are all very important questions. The genetic material in form of very long, thick and dark staining is called. This is very important definition, isn't it? So question is, what is that genetic material which is very long, thick and dark staining? What is it referred to as? Option A, centriole, chromatids and centromere. So the right option will be option number B, that is chromatin. Okay. Question number 2. Each chromosome consists of two symmetrical. You see here diagram. You see these are chromosomes. Chromosomes are formed by chromatin, which consists of DNA. It is made up of purines and pyrimidines. Okay. So you must remember the sequence also. In arranging also it may come. Question number 2. Each chromosome consists of two symmetrical structure. For example, suppose this is one symmetrical structure and this is the other. We can divide it like this. Okay. So this is one part and this is the other part. See this. Now each chromosome consists of two symmetrical structure. What are that? That are chromatids, centromere, chromatin fiber or arms. So basically when we talk about this question here, the right answer will be chromatids. Okay. So see, these are the chromatids. See here, symmetrical structure are referred to as chromatids, and the point where two chromatids are joined, that particular point is called centromere. That is called centromere. Clear? So centromere and chromatid, two important words are clear. So for this, the right option will be option number A. Question number 3. Rod shaped chromosomes having centromere at a proximal end, means where chromosome will be like this type. See here chromosome, here basically the ending will be at one end, यानी एक एंड में इस यहाँ पे होगा क्रोमोसोम का एंडिंग. यहाँ पे हमने इससे पहले वाले डायग्राम में देखा था, वो बीच में था ना. ये एक साइड अगर है तो उसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इसको टीलोसेंट्रिक. क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक. अगर बीच में हो गया तो बोलेंगे मेटासेंट्रिक. थोड़ा सा अगर ऊपर है तो हो गया सब मेटासेंट्रिक. ठीक है. तो दिस आर द ऑप्शंस. व्हाट आर द वेरियस rod shaped chromosomes having centromere at the proximal end is called. So here the right option will be telocentric. This is the important one. Next, question number 4. Pentose sugar, phosphate and nitrogenous base together form, means what are the what do this form? Pentose sugar, phosphate and nitrogenous. See here, pentose it is here, nitrogenous base is here and sugar. What it is forming? It is forming a nucleotide. So right option will be option number C. Clear? Done? I hope it is clear. Now question number 5. Who among the following is considered as the father of genetics? Very important question. बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स आप किसको बोलते हो, तो आपको याद रखना है. इट इज डल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आप डायग्राम याद रखें और इनका एक्सपेरिमेंट जिस पे था वो पी, वो दोनों वर्ड याद रखें. पी, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पी? इट इज पाइसम सेटाइवम. क्या है इसका नाम? पाइसम सेटाइवम. ये वर्ड भी याद रखें आप. सेटाइवम. डन. पाइसम सेटाइवम. डन. क्वेश्चन नंबर 6. द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो जीन, यानी जो जेनेटिक कंपोजिशन है, कंस्टिट्यूएंट है, उसको आप क्या बोलोगे? तो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को आप बोलते हो, देखो बेसिकली ये होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप. ठीक है ना. तो फिनोटाइप तो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे हम दिख रहे हैं. लेकिन जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है ना, उसमें उसके जीन्स की बात करता है. तो जीन्स की बात करेगा तो वो किसके अंदर आएगा? दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर ऑप्शन ए फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस. सो राइट ऑप्शन हियर विल बी जीनोटाइप. ओके. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 6 इट इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. यू सी वेरी इंपॉर्टेंट. सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ये स्पर्म है, इसको देखें. इसका हेड जो होता है उसके सामने होता है एक्रोसोम. ये पेनिट्रेट करता है एग के अंदर. इसके अंदर हाइलोरिनोनिक एसिड एंजाइम होता है जो एग का आउटर कवरिंग डिसॉल्व करता है. आपको याद होना चाहिए. इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल. यहाँ हो गया फिर आपका सेंट्रियोल्स. ओके. और यहाँ पे
सबसे इंपॉर्टेंट वो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? इट सप्लाइज एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, यानी स्पर्म को चलने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है ना, मूवमेंट, उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया एक्सियल फिलामेंट, ये टेल होता है, ये इट डज लैसिंग मूवमेंट करता है और ये स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, डन। अब देख लेते हैं। इन मैन स्पर्म कंटेन्स ऑटोजोम्स। बोला कि स्पर्म्स में ऑटोजोम्स होते हैं और क्या हो सकता है? आप प्रोबेबिलिटी बताएं। बेसिकली सी एक्स अगर हो गया इट इज, और एक्स वाई, ये दो बनते हैं हमारे बेसिकली क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इसमें एक्स इज फाउंड इन फीमेल्स, ये किसके अंदर बनेगा? फीमेल्स के अंदर। और एक्स वाई अगर हो गया ना तो ये किसके अंदर बनता है? मेल्स के अंदर। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ऑटोजोम होने के बाद अब बताएं कि जो स्पर्म होता है उसमें जो क्रोमोसोम बचा वो एक्स वाई होता है, बहुत मतलब एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, या एक्स और वाई दोनों में से कोई एक होगा, ओनली वाई क्रोमोसोम और ओनली एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इट इज आइदर एक्स और आइदर वाई। अब देखो यही इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, इट इज आइदर एक्स और आइदर वाई। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखें आप। आइदर एक्स आइदर वाई का मतलब क्या है? देखें यहाँ पे, इसका मतलब है अगर एक्स इस क्रोमोसोम सॉरी इस स्पर्म के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम जाके डोमिनेट कर रहा है तो वो लड़की होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम जीन डोमिनेट कर रहा है तो क्या होगा? लड़का होगा। तो यानी बेसिकली हमने क्या देखा है कि अगर कोई बच्चा वो लड़की हो रही है या लड़का हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पर्म, यानी स्पर्म के अंदर कौन सा क्रोमोसोम है इस पे डिपेंड करता है। इफ इट इज एक्स तो देयर विल बी गर्ल चाइल्ड, इफ इट इज वाई देयर विल बी बॉय चाइल्ड। बट वो मेल हो रहा है या फीमेल हो रहा है, उसका फीमेल का उसमें कोई हाथ नहीं है। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। जो लड़का पैदा हो रहा है, आइदर इट इज ए बॉय और ए गर्ल, वो फीमेल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेल्स हैं। लेकिन हमारे समाज में होता है क्या है, अगर देखा है आपने कि अगर बच्चियां पैदा होती हैं तो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना वो औरतों को दोष देते हैं, लेकिन रियल में यहाँ देख लो, वाई क्रोमोसोम होगा या एक्स क्रोमोसोम, ये डिपेंड करता है किस पे? ह्यूमंस पे। अगर ह्यूमंस के अंदर सपोज करो एक्स, ये हो सकता है एक जो बच्चा है क्रोमोसोम, या वाई। अगर एक्स है उसके अंदर तो लड़की होगी, और अगर वाई है तो क्या होगा? लड़का होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन ओनली मेल। लड़का या लड़की होने में फीमेल्स का कोई रोल नहीं है, ये समाज के लिए हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी समझ में आया ना, अगर लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, इसमें मदर का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रोल फादर का है। अगर उसका एक्स क्रोमोसोम बना उस वक्त और जाके फ्यूज हुआ तो लड़की होगी, अगर उस स्पर्म में अगर वाई क्रोमोसोम है तो फ्यूज होने के बाद वो लड़का बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ा सेंटिमेंटल क्वेश्चन है, आ सकता है, देखें ये नीट वगैरह के एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ मदर, एक मदर है, उसके 7 लड़कियां हो गई, 7 गर्ल चाइल्ड, देयर आर 7 गर्ल चाइल्ड ऑफ ए वुमेन। ओके, नाउ यही आपको ये क्वेश्चन अब भ्रमित करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8th चाइल्ड टू बी अ बॉय। यानी क्वेश्चन होगा कि आप बताएं जो 8वां बच्चा होगा ना, 8वां बच्चा 8th चाइल्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लड़का हो। पहला ऑप्शन यहां देगा तुरंत 90%, दूसरा ऑप्शन देगा 75%, तीसरा ऑप्शन देगा 68%, चौथा ऑप्शन देगा आपका 50%, और जो सही ऑप्शन होता है वो बिल्कुल लास्ट में रखेगा, क्योंकि आप तो इमोशनली इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो। आपको लगेगा कि 7 लड़कियां हो गई हैं तो 8वां ना लड़का ही होगा। देन यू आर गोइंग टू टिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 90%। और ये आप यही गलत करेंगे, चाहे उसकी 2 लड़की हो, 4 लड़की हो, 10 लड़की हो, 20 लड़की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा ना अगला का, वो सिर्फ 50% ही बनता है। यानी नेक्स्ट जो बच्चा आने वाला है वो लड़का होगा या लड़की, वो सिर्फ 50%, 50-50 चांसेस हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन। यानी F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है उसका क्या है, आप बताएं। F2 जनरेशन में जो मोनोहाइब्रिड का F2 रेशियो का फिनोटाइप और जीनोटाइप हमने एक्सप्लेन किया है वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वीडियो आप जरूर देख लें इसको। तो ये क्या बनता है, तो दैट इज रेशियो इज 3:1। ये आपको याद करना है,
ठीक है ना। ये रेशियोज एज इट इज पूछता है और ये आपको ऑलरेडी लर्न होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर चाहिए तो मैंने डिटेल वीडियो दिया है, उसमें आप जरूर जाके देखें, ठीक है। देखो मैंने बायो का सारा चैप्टर बना के रखा हुआ है, आपको जो चैप्टर में डाउट लग रहा है आप उस चैप्टर में जाएं, उसको पढ़ें, उससे क्वेश्चन मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर डॉर्फ प्लांट, यानी प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक ना। द ऑफ स्प्रिंग विल बी, अब बोल रहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग है बताइए वो क्या होगा, पूरा टॉल होगा, पहला ऑप्शन दिया है 50 टॉल 50 डॉर्फ, ऑल डॉर्फ 3:1 का रेशियो। तो आप इसका तुरंत बना लें। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे अगर हमने इसको क्रॉस कराया तो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से हमने लिया अगेन इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये फिर लास्ट से हमने लिया ये हो गया क्या कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कैपिटल टी देखें डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट इन ऑल, तो यानी पे यहाँ पे सारे क्या होंगे टॉल होंगे, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखें प्योर टॉल इसमें होता है क्या, टी टी इज क्रॉस्ड विथ डॉर्फ टी टी, ऑफ स्प्रिंग्स आपके सामने आ गया। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 9:3:3:1 ड्राइविड रेशियो इज ड्यू टू, यानी ये किसकी वजह से होता है इतना ज़्यादा वेरिएशन, इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों हो रहा है। मेंडल्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था F1 F2 जो मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड में, तो इसमें सबसे खास बात क्या था कि उनका जो लास्ट स्टेप था यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, इससे वेरिएशंस खूब ज़्यादा आए थे, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा रेशियो जो आया था ना 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड रेशियो में, वो क्यों आया था, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आया था। किसकी वजह से आया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ प्लांट विद ग्रीन पॉड एंड स्मूथ सीड विथ जीनोटाइप कैपिटल जी स्मॉल एस विल गिव राइज टू द फॉलोइंग्स, यानी बोला कि जीनोटाइप है इसका क्या कैपिटल जी है और स्मॉल एस विल गिव टू फॉलोइंग गैमेट्स। पूछा है गैमेट्स क्या बनेंगे आप बताएं इसका, ठीक है ना। तो गैमेट्स के लिए देखो जैसे मान लो एक ये हो गया, ये हो जाएगा यानी कैपिटल जी स्मॉल एस, फिर यहाँ अगला ले लेते हैं तो कैपिटल जी स्मॉल एस, फिर स्मॉल जी स्मॉल एस, ये लास्ट वाले का भी क्या बनेगा स्मॉल जी स्मॉल एस। तो इसके लिए आप इसमें देखें मैच करें, हो गया कैपिटल जी, यहाँ कैपिटल एस तो है ही नहीं तो ये गलत हो गया, क्योंकि अपने तो क्वेश्चन में ही कैपिटल एस नहीं है ना। देखो आप यहाँ पे ये तो स्मॉल एस है, अब कैपिटल जी स्मॉल एस, अब देखो यहाँ ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों स्मॉल एस आया, इसमें किसी में स्मॉल एस नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखें आप ये ऑप्शन कैपिटल जी स्मॉल एस ये है, यहाँ है कैपिटल स्मॉल जी स्मॉल एस ये भी है, तो यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। 4 देख लेते हैं कैपिटल जी स्मॉल जी है ही नहीं कहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका कैपिटल जी स्मॉल एस, ठीक है। यानी ग्रीन पॉट्स विथ स्मूथ सीड्स ये आपके इसके ऑप्शन सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है ना। कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो फर्स्ट देखें है इसका दो कैपिटल स्मॉल के ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड में देखें आप थोड़ा, बी हाइब्रिड इज हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कैपिटल एच स्मॉल एच, यानी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। होमोजाइगस का केस क्या बन सकता है, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये तो सही है। हेट्रोजाइगस में देखो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस इसको बोलते हैं, जैसे सपोज करो कैपिटल एच हो गया और स्मॉल एच, डन, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो हेट्रो का मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, यानी यहाँ पे अगर कैपिटल एच स्मॉल एच है ना तो ये होगा कौन सा हेट्रोजाइगस, क्योंकि अलग हो गया, डन। और अगर यह कैपिटल एच या स्मॉल एच दोनों है ना तो ये कौन सा हो गया आपका होमोजाइगस, क्या हो जाएगा होमोजाइगस, डन। अब देखें तो यहाँ पे इसके हिसाब से हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों सही है। ये देख लो स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल एच, यहाँ पे हो गया 2 प्रोबेबिलिटी है कैपिटल आर स्मॉल आर। हाइब्रिड की हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका कौन सा हेट्रोजाइगस हाइब्रिड्स होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन ए है ना के ये क्या हाइब्रिड है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्लियर, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो हियर द राइट, एंड इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा ए, ठीक है ना। यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखें लिख लेना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डन।
सो आई होप आपके क्वेश्चन नंबर 11 12 क्लियर हुए. नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 13. द जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, थोड़ा आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के ध्यान से. जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स. अब जब भी जीन की बात करें भैया देख लो, ट्रिक है, जी वर्ड यहाँ है ना तो आंसर में भी जी वर्ड होगा. फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिजिकल ट्रेट, मेंटल ट्रेट. तो इसमें जीन्स की हम बात करेंगे तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनोटाइप को. अब थोड़ा यहाँ देख लें आप, फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंस क्या है, मैं वहाँ समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में. देखें जीनोटाइप का देखो, जैसे मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हो गया जीनोटाइप, इसका हो गया स्मॉल टी, यानी इसमें एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से अगर एक भी अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना, यानी वो एक्सप्रेस करेगा. ये खास हो गया. अब देखो यहाँ पे दोनों तो रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो ये ड्वार्फ प्लांट हो गया, कौन सा प्लांट हो गया? ड्वार्फ प्लांट. और ये कौन सा प्लांट हो गया? टॉल प्लांट, ठीक है ना. ये छोटा प्लांट है ड्वार्फ और ये कौन सा हो गया? टॉल प्लांट. डन. अब जब ये ड्वार्फ और टॉल प्लांट बन रहे हैं तो ये इसका जो ये मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा ना, ये जीनोटाइप है. क्या है ये इसका जीनोटाइप है. अब इसके हिसाब से ये प्लांट लंबा है, टॉल है. कौन सा प्लांट है? ये टॉल हो गया. और ये कौन सा प्लांट हो गया? ड्वार्फ हो गया. ये क्या है? इसका फिनोटाइप है. क्या है इसका? फिनोटाइप. आई होप आपको ये समझ में आ गया. फिनोटाइप का मतलब देखने में वो कैसा लग रहा है, देखने में लंबा है, टॉल है, फिनोटाइप हो गया. ये छोटा प्लांट है, बौना है, ये इसका फिनोटाइप हो गया. जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है जीनोटाइप. यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप होता है, ठीक ना. अब ये क्या एक्सप्रेस करता है? जैसे ये देखो आप, इसमें कैपिटल टी तो ये टॉल प्लांट, ये फिनोटाइप हो गया कि वो लंबा प्लांट को एक्सप्रेस कर रहा है. ये टॉल, ये ड्वार्फ. ये जीनोटाइप और फिनोटाइप का डिफरेंस क्लियर. आप वीडियो प्लीज जरूर देखें इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. एलील ऑफ द सेम कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म अकर एज. बोला है कि अगर एक ही कैरेक्टर में, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो जो एलील्स है ना वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमेशा याद रखें, एलील्स आर कॉन्ट्रास्टिंग, यानी ये दो एलील्स के फॉर्म में, यानी पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना. एलील्स का मतलब एक टॉल हो गया तो एक ड्वार्फ हो गया, ठीक है ना. एक संकेन हो गया, फ्लैटेंड तो एक स्वेलन हो गया. तो ये एलील्स हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ आप लेते हो. जितना डिफिनीशन अगर आपको डाउट हो रहा है वो प्लीज वीडियो जरूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी यूटिलाइज्ड बाय. यानी अगर हम बात करें कि मेंडल्स लॉ में को आप ये जो सेग्रीगेशन होता है यानी जो सेपरेशन होता है उसमें आप कैसे इसको कैसे इलस्ट्रेट करते हैं, किस एग्जांपल से आप इलस्ट्रेट करेंगे. देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ये एक्सप्रेस करेगा क्योंकि इसमें दोनों में ना रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक ना. देखें आप, एक में डोमिनेंट है और एक में क्या है, दोनों में रेसेसिव. लेकिन ये और बाकी कोई इसमें से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर सी. अब देखें दोनों पेयर में रेसेसिव कैरेक्टर होना चाहिए और किसी एक पेयर में भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तो वही रिप्रेजेंट करेगा. देख लें आप, तो ये ऑप्शन सही है. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्रॉस बिटवीन टू हाइब्रिड रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटिपिक रेशियो. यानी जो क्रॉस है डाई हाइब्रिड का, अब वो किन, उसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या होगा, ये तो पहले एक बार आ चुका है, आपको ये याद होना चाहिए. 9:3:3:1, ठीक है ना. ये फिनोटिपिक रेशियो है. आगे बढ़ रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 17. इन अ क्रॉस डी डी, यानी मान लीजिए ये क्रॉस कराया गया है, क्या है, कैपिटल डी और स्मॉल डी. कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस विथ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हो तो कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक ना, ठीक है. कैपिटल डी स्मॉल डी यहाँ भी हो गया और ये हो गया आपका स्मॉल डी. डन. अब क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं. बोला है कि द परसेंटेज ऑफ ऑफ स्प्रिंग विद द सेम फिनोटिपिक पेरेंट्स. बोला है कि कौन वो जो, यानी यहाँ पे देखें आप कैपिटल डी दोनों में है. बोला है कि वो कैपिटल डी का क्या परसेंटेज आएगा. तो देखें आप, इसमें यहाँ भी ये भी डोमिनेंट जीन है कैपिटल डी, यहाँ भी है कैपिटल डी, यहाँ भी है कैपिटल डी. चाहे ये कुछ को भी रिप्रेजेंट करे, कोई भी कैरेक्टर. यहाँ स्मॉल डी हो गया, यानी एक वेरी कर रहा है, यानी 3/4, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 75%. तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा आपका 75%. डन.
अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ पे कैपिटल डी यानी ये डोमिनेंट जीन का ये परसेंटेज है। किसका परसेंटेज है? डोमिनेंट जीन का, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन ना कुछ अलग पूछा है। देखिए यहाँ बोला है कि सेम ये इसका कितना प्रोबेबिलिटी है आने का, कैपिटल डी स्मॉल डी का। तो देखिए यहाँ कैपिटल डी और स्मॉल डी तो यहाँ सिर्फ 2 ही है ना, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 100 यानी कितना परसेंट हो गया? 50%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50%। उसमें पूछा है कि कैपिटल डी स्मॉल डी का कितना परसेंटेज आ रहा है, आप ये बताएं। अगर वो पूछेगा कि डोमिनेंट का क्या रेशियो है तो आप बोलेंगे 75%। अब बोलेगा कि सिर्फ रिसेसिव का क्या रेशियो है तो ये रिसेसिव का हो गया यानी 1/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका? 25%। इसमें मैंने सारा कैलकुलेट कर दिया है। एग्जाम में चाहे कोई भी पूछे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटरमाइंड बाय। कह रहा है कि फिनोटाइपिक जो फिनोटाइप होता है किसी ऑर्गेनिज्म का वो कैसे आप डिटरमाइन करते हो। तो फिनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए तो हम सिर्फ उस पर देखते हैं, देखने से पता चल जाता है कि वो बड़ा है छोटा है। तो फिनोटाइपिक रेशियो आर ऑब्जर्व बाय लुकिंग एट इट, यानी इस पर देख के एनालाइजिंग इट्स जीन, जीन से तो हमको जीनोटाइप मिलेगा, ऐसा है ना। तो देखने से आप उस पर फिनोटाइपिक रेशियो पा सकते हैं। सो यही आंसर सही है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मेंडल्स फॉर्मुलेटेड हिज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आफ्टर ही हैड स्टडीड F1 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी प्रोडक्ट्स। तो इसमें एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट ट्रू अबाउट म्यूटेशन। ये खास है, म्यूटेशन जो है ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान से देखें। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, यानी किसी भी कारण से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अचानक से जो परिवर्तन हो जाए उसे क्या बोलते हो आप? म्यूटेशन। देखें, इट इज अ सडन एंड फास्ट प्रोसेस। इसमें क्वेश्चन है नॉट ट्रू, ये एग्जाम में आप ध्यान देंगे, नॉट छोड़ के गलत करके आते हैं आप। इट इज एन इनहेरिटेबल चेंज, यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो अगले जनरेशन में पास होगा, ये भी सही है। इट इज स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये स्लो बोल रहा है यानी ये तो इवोल्यूशन हो गया ना, इवोल्यूशन धीरे और लगातार चलता रहता है, म्यूटेशन थोड़ी होगा। इट रिजल्ट्स इन न्यू रिजल्टिंग फीचर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी नए स्पीसीज इससे बन जाते हैं, तो ये भी सही है। आपका कौन सा इसमें ऑप्शन इस हिसाब से सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सारे डिफिनीशंस म्यूटेशन के जो हमने लिख दिए हैं, जरूर ये इसको आप इन पॉइंट को प्लीज याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंडेलियन कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है। तो मेंडल्स के जितने भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं प्लीज रट के जाएं, उससे किसी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक ना। तो आप देखें इसमें सीड शेप, इसमें सीड शेप है ही, देख लें आप इसको। पॉड लोकेशन, पॉड का लोकेशन नहीं है इसमें, देख लो आप। पॉड का स्वेलन है, मतलब फुला हुआ है या पचका हुआ है, इस टाइप से। प्लीज ये जितना 7 कैरेक्टर है ना, आप इसको जरूर एक बार पढ़ के जाएं, इससे किसी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल सही है। हाइट ऑफ द प्लांट टॉल या डॉर्फ, ये भी सही है। तो ये नहीं है, ये याद रखना, इससे किसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन होगा इसमें। तो आप ये कैरेक्टर कितने होते हैं वो याद करके जाएं। वो कितने होते हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने कैरेक्टर हो गए? 7 कैरेक्टर। इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। डन। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज रॉन्ग अबाउट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें हमने बताया था ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है। नॉर्मली 5 से 8 मिनट के अंदर ब्लड को क्लॉट हो जाना चाहिए, लेकिन वो अगर क्लॉट नहीं हो रहा है तो वो डिजीज़ हो सकता है। उसके अंदर विटामिन के की भी कमी हो सकती है। उसमें उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देखें आप क्या है। विच इज़ रॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, वो पूछ रहा है कि क्या गलत है, आप बताएंगे। सही नहीं बताना है, क्या बताना है, क्या गलत है। फर्स्ट, इन दिस डिसीज ब्लड फेल्स टू क्लॉट, सही है। इट इज द रिजल्ट ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, चलो देख लेते हैं अभी। इट इज द जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम, ये भी सही है। एक्स क्रोमोजोम है यानी इसीलिए फीमेल इसकी कैरियर होती है। होता है ये मेल्स को है, फीमेल्स में बहुत कम होता है, लेकिन कैरी कौन करता है इसको? एक जनरेशन से दूसरी जगह फीमेल्स कैरी करती हैं। फीमेल्स आर यूजुअली कैरियर, ये सही हो गया, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से सही है। इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है ये? रिसेसिव कैरेक्टर। डन। समझ में आया क्या? अगर इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप वीडियो में जरूर जाएं, मैंने बहुत डिटेल में इसको पुराने समय से लेकर अब तक एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 23, नेम ऑफ ऑटोजोम इन ह्यूमंस, सॉरी नंबर ऑफ ऑटोजोम्स। बोला है कि ऑटोजोम्स जो होते हैं ना उनकी आप संख्या बताएं। तो देखिए आप, हमारे क्रोमोजोम्स बेसिकली 23 पेयर होते हैं, ध्यान से देखें आप। 23 पेयर में 22 होते हैं ऑटोजोम्स, ठीक ना,
और एक पेयर हो गया आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। हो गया ना। इसमें देखें आप, बोला कि ऑटोसोम्स का बताएं तो कितना हो गया, 22 पेयर्स हैं, तो 22 इंटू 2 कितना हो गया, 44। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। डन। अब रह गई ये 2 की बात करें कि ये क्या है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स। डन। ये भी क्वेश्चन अब 44 आया तो ऑप्शन में तो वो आने वाले जो परीक्षा है उसमें तो वो इसको भी पूछ सकता है। तो जो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो इस हिसाब से करो कि कम से कम इसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन आए तो हम कर लें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट ट्रेट। देखो फिर आ गया डोमिनेंट ट्रेट, पूछ रहा है कि कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा अटैच्ड ईयर लोब, स्ट्रेट हेयर लाइन, ब्लू आई, ये सारे रिसेसिव हैं। आप इसको एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है बुक के अंदर, उसको जरूर याद रखें। डोमिनेंट ये रोलर टंग वाला है, ये डोमिनेंट है, ठीक है ना, ये अलग हो गया तो ये ऑप्शन सही है। मेंडल्स के कैरेक्टर कितने हैं, उनका कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट है उसको याद रखना है, और ये भी आप प्लीज याद रखें जरूर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट। ये बहुत इजी है, बार बार पूछता है, बीन प्लांट, ग्राम प्लांट, पोटैटो और पी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, पी। इसका बॉटनिकल नाम मैं लिख दे रहा हूं, पूछता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। डन। अब मैं पहले से अच्छा लिख रहा हूं, धीरे धीरे ये मैं काफ़ी सुंदर लिखने लगूंगा इस पर, ये थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हो पाया इस बोर्ड पे, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26, ऑल द फॉर्म्स ऑफ सेम जीन और फैक्टर विच कंट्रोल कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इज। कह रहे हैं कि जितने भी सेम जीन या फैक्टर के एक्सप्रेशन कंट्रोल करने वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्या बोलते हैं आप, ठीक है ना। तो ये तो हमने डिफिनीशन के हिसाब से लिया है, इसको थोड़ा ये आप इस डिफिनीशन को जरूर याद रखें। उनको फैक्टर बोलते हैं क्या, ट्रेट बोलते हैं क्या, जीन बोलते हैं क्या, नहीं तो उनको क्या बोलेंगे आप, एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील्स। ये एलील्स क्या होता है, ये कॉन्ट्रास्टिंग शब्द जब भी आए तब भी आप समझ लेना कि किसकी बात कर रहा है, ये एलील्स की बात कर रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। जैसे टॉल ड्वार्फ, ठीक है ना। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब उल्टा कैरेक्टर, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है ना, वही उसी को पूछ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द रिसेसिव जीन इज वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी रिसेसिव जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है। ये डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का डिफिनीशन है, ध्यान से देखें आप। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ 2 प्रोबेबिलिटी लिख दी, ठीक है ना, और यही 3 प्रोबेबिलिटी है टॉल और ड्वार्फ होने की। इसमें देखें, यानी मैंने बोला कैपिटल टी इज डोमिनेंट, देख लें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं आपका, और स्मॉल टी कौन सा हो गया आपका, रिसेसिव। अब देखो ध्यान से, जो डोमिनेंट है वो कैपिटल टी है, यानी कैपिटल टी, ये जो प्लांट है ना ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा, कोई डाउट नहीं है। और लास्ट वाला जो है ये भी क्या होगा, ड्वार्फ होगा। अब देखिए ध्यान से, ये टॉल हो गया, ये टॉल हो गया, ये ड्वार्फ। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफिनीशन क्या है ये देखें। डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी ये जहां जो किसी फॉर्म में कहीं भी प्रेजेंट होना डोमिनेंट, तो वो खुद का एक्सप्रेस ही करेगा। जैसे मान लो कैपिटल टी यह डोमिनेंट फॉर्म है, यहाँ भी ये प्लांट टॉल हो गया, यहाँ देखें। लेकिन जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहाँ भी अगर ये प्रेजेंट है ना तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, यही डोमिनेंट है। लेकिन रिसेसिव की बात करें, ये जब खुद ही होगा, यानी इसी जो इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसके प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है। समझ में आ गया। डोमिनेंट कहीं भी होगा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन रिसेसिव जो कॉन्ट्रास्टिंग जीन है, कॉन्ट्रास्टिंग क्रोमोसोम है, उसके प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। यानी ये सिर्फ प्योर होगा, जैसे स्मॉल टी है तभी ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। अगर एक भी इसमें कैपिटल टी का क्रोमोसोम आया तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है ना। डिफिनीशन हो गया, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट तो बोला ये क्या है 27 का, ये होमोजाइगस। देखिए ये कौन सा हो गया, फिर आप बताइए, होमोजाइगस हो गया। ये कौन सा हो गया, हेट्रोजाइगस। और ये फिर कौन सा हो गया, ये भी हेट्रो हो गया। तो किस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करेगा, होमोजाइगस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, होमोजाइगस के, ठीक ना। सो आई होप यहाँ आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें आप इसको, रीजन्स वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, यानी मेंडल्स ने, जो मेंडल है उन्होंने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, इसका रीजन दिया हुआ है और मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया, ठीक ना। प्लीज़ कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है आप वीडियो एक बार जरूर देख लें जेनेटिक्स का। अगर
उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखें आप, क्यों उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, वो प्लांट बाइसेक्सुअल था, यूनिसेक्सुअल था, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ ऑप्शन होगा बोथ ए एंड। उसके अंदर वेरिएशंस भी बहुत सारे थे। कोई देखें जैसे कैरेक्टर में टॉल, ड्वार्फ, एक्सियल, टर्मिनल, तो बहुत सारे वेरिएशन थे। और ये प्लांट बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल का मतलब सेम फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों थे, इसीलिए टेस्ट करना या उसको एक पर्टिकुलर गार्डन में ग्रो करके उसको हाइब्रिड कराने में बहुत आसानी मिल रही थी, ठीक है ना। तो ये खास बात हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, सेल कंपोनेंट विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी बोला कि वो कौन सा सेल का कंपोनेंट है जो जब सेल डिवाइड कर रहा है ना तभी दिखाई देता है, आप बताएं। तो वो बिल्कुल आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, क्रोमोसोम। ये जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो खुद ये ग्रो करके बड़ा होके टूट के अलग अलग सेल्स में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमन स्ट्रेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोला कि जो ह्यूमन स्ट्रेचर है ना ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक का मतलब जो एक कई सारे जीन्स उसको कंट्रोल करें। मोनोजेनिक एक जीन कंट्रोल करेगा। बाइजेनिक कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब इसमें ये आप देखो जैसे रेड रोज को वाइट रोज से क्रॉस कराया गया तो ये कैसा निकल के आ गया इसमें से, पिंक, तो दोनों जीन डोमिनेट कर गए, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो इसका ह्यूमन स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बहुत सारे जीन से रेगुलेट होता है। ये किसका ऑप्शन हो गया इसका, पॉलीजेनिक ट्रेट। ओके, 31, टेस्ट क्रॉस F1 इंडिविजुअल्स आर डन विथ, यानी हम टेस्ट क्रॉस जो है वो किसके साथ करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है डोमिनेंट पेरेंट, रेसेसिव पेरेंट, एनी ऑफ दिस, क्रॉस की जरूरत ही नहीं है। तो देखें जब आप करते हो ना तो देखो इसमें हमेशा ये रेसेसिव से करते हैं। किससे करते हैं, रेसेसिव से। तो ये कौन सा आंसर सही होगा आपका, रेसेसिव पेरेंट्स। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडल्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ये काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि आप किसको प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं, यानी किस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन। यहाँ वर्ड इसका मतलब पूछता है, देखो मैं बता रहा हूँ, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ओके, अलग अलग होना ही क्या है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। नेक्स्ट, और ये कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट स्लाइड है, देखें क्वेश्चन नंबर 33, विच क्रॉस वुड प्रोड्यूस फिनोटिपिक रेशियो दैट वुड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी बोल रहा है कि कौन सा ऐसा क्रॉस है जो आपको ये बताएगा कि कौन सा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इसके हिसाब से आपको ये पता चलना चाहिए कि मतलब इनमें से किस क्रॉस को देख के आप बता दोगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखा रहा है ये नहीं दिखा रहा है। देखें इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, अगर ये जब होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, टॉल है, और स्मॉल टी क्या हो गया आपका, ड्वार्फ है, ठीक है ना। अब यहाँ तो आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो ये भी टॉल रिप्रेजेंट करेगा, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो इसमें से ये सारे ड्वार्फ, तो सही किस में आपको पता चलेगा, वो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखो ये जो रेशियो है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रिप्रेजेंट करेगा ये रेशियो में, ठीक है ना। तो आप इनको भी एक बार थोड़ा, ये एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है ना, तो आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 34, ये पॉइंट वाइज मैंने ले लिया था, होलेंड्रिक जीन्स के लिए थोड़ा जरूरी है। देखें होलेंड्रिक जीन्स क्या होते हैं, जीन्स विच एक्सक्लूसिवली अकर ऑन वाई क्रोमोसोम, यानी वो जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पे अकर करें उन्हीं को बोलते हैं हम होलेंड्रिक। इनका कैरेक्टर क्या है ध्यान से देखें, जैसे सपोज करो ये आपका एक्स क्रोमोसोम हो गया, डन। अब एक्स क्रोमोसोम के तुलना में जो वाई क्रोमोसोम होता है ना वो काफ़ी छोटा होता है। समझ में आया क्या आपको, वो जो वाई क्रोमोसोम होता है वो काफ़ी छोटा होता है, आप देख लेना उसको बुक्स वगैरह में। और इसी वाई क्रोमोसोम के जो नीचे वाली भाग है ना, नीचे वाला भाग, यानी मैं अगर शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं बना दे रहा हूँ ऊपर, ये सपोज करो एक वाई क्रोमोसोम मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो जो वाई क्रोमोसोम है ना उसके ये नीचे स्पेशल ये वाले जो भाग है ना यही होते हैं ये होलेंड्रिक क्रोमोसोम, ये होलेंड्रिक जीन्स सॉरी यही होते हैं। अब इनका काम क्या है, देखो ये मेलनेस रिप्रेजेंट करते हैं। मेलनेस का मतलब जैसे मेल्स के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ मोटा होना, बॉडी स्ट्रक्चर बनना, ये सारा जो मेलनेस है ना, कान पे बाल आना, ये सब ये होलेंड्रिक जीन्स ही रेगुलेट करते हैं। और ये कहाँ होंगे, वाई क्रोमोसोम के लोअर पार्ट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला वर्ड है व्हाट इज प्लियोट्रॉपी,
यहाँ है सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ ट्रेट, यानी एक जीन जो कई सारे कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को रेगुलेट करता है, उसे क्या बोलते हो आप? प्लियोट्रॉपी। ओके, वेरिएशन ये अगला इंपॉर्टेंट था वर्ड, इसलिए हमने इसको कवर अप कर लिया। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ ए प्लांट और एनिमल्स। और देखो जैसे वेरिएशन का मतलब जैसे हर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम अपने पेरेंट्स से अलग हैं, प्लस हम खुद में अलग अलग हैं। कोई अगर जुड़वा भाई बहन को छोड़ दे तो सब अलग अलग हैं, तो यही होता है वेरिएशन, ठीक है ना। इट इज स्लो एंड धीरे धीरे वेरिएशन होता है और लगातार होता रहता है, ठीक है ना। ये एक इवोल्यूशन में ये मददगार होता है। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे सारे, और कोई डाउट नहीं होगा इससे रिलेटेड। और प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कई बार देख लें, और बाकी जो चैप्टर्स हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सबका, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एमसीक्यू वगैरह, और मैं एक सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने हाफ ईयरली में बनाया था, उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे। अब मैं एक बार फिर से एनुअल के लिए भी बना दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हाँ, मैं भूल गया, प्लीज़ इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, प्लीज़ लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।